Hello students, good morning. Students, in the last lecture we have studied the concepts of runtime storage allocation used by compiler. How compiler takes care of the target machine also, how to allocate the resources, how to manage the memory. This concept we have studied. In this lecture we will see the error detection capabilities and how compiler tries to recover from those errors. Means compiler, which is also known as one of the or we can say one of the most important tasks for compiler is to detection of the error, how compiler detect those error and how it tries to recover from those error. This is the today's lecture. So today we will discuss the error handling capabilities of compiler, uh, s- some classifications, errors on lexical phase, syntax and semantic phase errors, error recovery strategies. So, what is error handling in compiler design? What basically error handling is? बच्चों, अगर हम लोग शुरुआत से बात करें तो when we are in the first year and we are compiling our C program, we have impression in our mind that compiler is a software or is a component of a C programming through which we can easily identify the mistakes we have done in our programming. जो भी हम गलतियाँ करते थे सी के प्रोग्रामिंग में, वो अगर हमें देखनी होती थी कि हमने रन करने से पहले हमने क्या कुछ सारी प्रोग्रामिंग सही लिखी है या नहीं लिखी है, तो ये काम हम करते थे। कंपाइलर उसको पहले कंपाइल कर लेते थे और कंपाइल करने के बाद हमें हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी हमारी मिस्टेक्स पता चल जाती थी और उन एरर्स को हम रिमूव कर देते थे। सो द बेसिक एजेंडा इज कंपाइलर is the one of the most important tasks or one of the the tasks which are performed by compiler is to to handle the errors. What is error handling? So error handling means we detect some sort of error. We will discuss how to detect, report to the administrator or the programmer, and tries to recover from those errors. The combination of these three techniques are known as error handling. तो क्या है इसमें the main the task of the error handling process are to detect each error, report it to the user, and then make some recover strategy and implement them to handle the error. During this whole process, processing time of the program should not be slow. This is the you can say the challenge of the compiler, or you can say as a compiler designer, if you are designing some compiler, this is a challenge that you have to also address. That if we are dealing with the error handling technique, so at the time of detection or reporting of the error, the programming should not be slow. Okay. अगर एरर की बात करें तो हम लोगों ने जब पार्सिंग कर रहे थे तो हम ये भी कह रहे थे कि पार्सिंग टेबल में जितनी भी ब्लैंक एंट्रीज हैं उनको भी हम एरर की तरह से ट्रीट करते थे, उसको हम सिंटैक्स एरर कह रहे थे। ठीक है। तो एक तरीका ये है एरर आइडेंटिफिकेशन का कि हम पार्सिंग टेबल में जितनी भी ब्लैंक एंट्रीज हैं उनको आइडेंटिफाई देख लें, और अगर हमारा कोई इनपुट उस ब्लैंक एंट्री में आ रहा है तो भी हम उसको एरर कहते हैं। ठीक है। तो ये हमने समझ लिया कि एरर हैंडलिंग कंपाइलर का एक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है जो कंपाइलर करता है। कैसे कैसे ये करता है, इसमें मैंने लिख रखा है, ये आपके नोट्स में भी है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर कंपाइलर रिक्वायर्ड डिटेक्शन ऑफ एरर एंड रिकवरी फ्रॉम दोज एरर. Recovery from those errors is important because it is required that compiler should scan the entire program so as to detect as many errors as possible. Okay. डिटेक्शन मीन्स कि कंपाइलर आपके प्राइमरी फेज में या हर फेज में हर थ्योरी के अकॉर्डिंग उसको स्कैन करे, स्कैन करने के बाद उसमें जितनी भी एरर मिले उन सभी एरर्स को डिटेक्ट करे और डिटेक्ट करके इसको रिपोर्ट करे। जब हम रिपोर्ट की बात करते हैं यानी जब हम उसके एरर मैसेज की बात करते हैं तो एरर मैसेज शुड नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड। ऐसा नहीं कि उसमें बहुत ही टेक्निकल टर्म आ जाए जो कि समझ में ही ना आए एक एंड यूज़र को।
There should not be duplicacy. That means same error message should not be reported again and again. It means कि एक हमें एक ही एरर मैसेज या एक तरह हम कोई जनरलाइज्ड एरर मैसेज नहीं थ्रो कर सकते कि कोई भी एरर आए हम यही एरर मैसेज दिखा दें, नहीं. इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक, इट शुड बी वेरी प्रिसाइज, और ये हमेशा आपके उस एरर के टुवर्ड्स ही होना चाहिए. Error message should report the error in original source program rather than in terms of internal representation of source program. It means कि जब हम एरर मैसेज शो कर रहे हैं, यानी जब रिपोर्ट कर रहे हैं एरर मैसेज को, ऐसा ना हो कि वो हमें बाइनरी या किसी किसी सोर्स प्रोग्राम या किसी सोर्स प्रोग्राम के आप कह सकते हैं किसी हमें टारगेट मशीन के फॉर्मेट में आ जाए या किसी लो लेवल कोड में दिखे, कि इसका रिप्रेजेंटेशन भी हमारा हाई लेवल यानी हमारे सोर्स प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए. सपोज हम जावा में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, और जावा में अगर हमें कोई, या हम सी में कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, और सी का कोई कोड हम जब कंपाइल कर रहे हैं तो वो हमें लेक्स के फॉर्मेट में या वाई वाई लेक्स के फॉर्मेट में हमें मिल रहा है. तो जब हम एरर मैसेज रिपोर्ट करें तो एरर मैसेज ऐसा ना हो कि हम वाई वाई लेक्स के फॉर्मेट में रिपोर्ट कर दें, हम इसका एरर मैसेज भी उसी सी के फॉर्मेट में ही रिपोर्ट करें जिसमें ये लिखी गई है या जिसमें हमने प्रोग्रामिंग की है. ठीक है. तो एरर मैसेज शुड नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड, देयर शुड नॉट बी एनी केस ऑफ डुप्लीकेसी, it should report in a original source program format and should be specific in nature. अब अगर हम एरर को क्लासीफाई करें तो एक सबसे कहते हैं कि रूट लेवल एक जो क्लासिफिकेशन है वो हम कहते हैं कि एरर इज आइदर कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर. कंपाइल एरर हमारी दो तरह की हो सकती है, कंपाइल टाइम एरर या रन टाइम एरर. इसका और कई भी क्लासिफिकेशन पॉसिबल है, जैसे कुछ एरर को हम कह सकते हैं कि अनरीचेबल कोड एरर, या हम उसकी कोडिंग पर्सपेक्टिव से आइडेंटिफाई करके भी हम एरर को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे सिंटैक्स फेज एरर, सिमेंटिक फेज एरर. इस तरह से भी हम इसका क्लासिफिकेशन कंपाइलर के फेजेस के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं. यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन आपको दो तरह से किया गया है, एक कंपाइल टाइम एरर और एक रन टाइम एरर. So, a runtime error, we know the runtime error which takes place during the execution of a program and usually happens because the adverse system parameters or invalid input data. What happens in the case of runtime error? We have seen the concepts of exception handling in Java, where we had discussed this term, how Java maintains the exception handling, how Java uses the concepts of exception handling, where we are focusing on the runtime error. Means a error which arises at the time of execution that comes under the category of runtime error. कौन कैसी एरर? जैसे हमने कोई एरे बनाया, उस एरे की साइज कम थी और हमने उसमें डेटा ज़्यादा डाल दिया, तो दैट कम्स अंडर दी रन टाइम एरर. हम कोई असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर ले रहे हैं इफ़ स्टेटमेंट के अंदर, वो भी हमारा रन टाइम एरर की कैटेगरी में जाएगा. तो इस तरह से कई सारी ऐसी एरर जो हमारे लॉजिक की वजह से आती हैं, जो हमारे प्रोग्राम में बैड प्रोग्रामिंग की वजह से आ जाती है, यानी हम कह सकते हैं कि इसको हमने गलत से लॉजिक डिज़ाइन कर रखी है. तो इस तरह की दैट एरर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रन टाइम एरर. दीज रन टाइम एरर्स आर नथिंग बट द एक्सेप्शन दैट वी आर डीलिंग इन द जावा प्रोग्रामिंग ऑल्सो. कंपाइल टाइम एरर. Compile time error rises at the compile time before the execution of the program. Syntax error or missing file references that prevents the program successfully compiling is the example of this compile time error. So, what basically compile time error? Compile time error are those error which comes at the time of compilation, means that comes before the execution of the program. Okay. सो हमें रन टाइम एरर के बारे में नहीं यहाँ पे डील करना, क्योंकि इट इज द प्रोसेस वेयर वी आर दिस एरर कम्स व्हेन वी आर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम, and compiler doesn't focus on the execution of the program, it focus before the execution of the program. So we have to deal with only compile time errors. हमें सिर्फ कंपाइल टाइम एरर्स के बारे में देखना है. हालांकि आज के जितने भी मॉडर्न कंपाइलर हैं, दे आर ऑल्सो डीलिंग विद रन टाइम एरर्स. जैसे आपने जब आप एक्सेप्शन हैंडलिंग ना भी लगाइए जावा में, और अगर आप डिवाइड बाय ज़ीरो की या एरे इंडेक्स की आप एरर करते हैं, तो जावा कंपाइलर आपका एडवांस है, इस वजह से ये आपकी उन तरह के एरर्स को भी आइडेंटिफाई या डिटेक्ट कर लेता है. बट इन जनरल, if you are dealing with compiler design, if you are dealing with compile time, then we have to focus on compile time error only.
So those error which rises at the time of compilation or before the execution of the program comes under the category of compile time error. So compile time errors are further classified as lexical error, syntactic error and semantic error. देखिए बच्चों, कंपाइल टाइम एरर मींस इसको ये तीन तरह से क्लासिफाई कर लिया गया है, जैसे लेक्सिकल फेज, सिंटैक्टिक और सिमेंटिक एरर। अब इसके बाद एक और कंफ्यूजन आती है कि क्यों नहीं और सारे फेज जैसे इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन और टारगेट कोड कोड जनरेशन को इस क्लासिफिकेशन में रखा गया। बच्चों, ये इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, टारगेट कोड या कोड ऑप्टिमाइजेशन का जो फेज है, ये सारे ही फेज आपके आपके एनालिसिस फेज के बाद आते हैं। यानी यहाँ पे आपके इनपुट में किसी तरह का कोई एरर नहीं हो सकता। आपके सोर्स प्रोग्राम की अगर कैसी भी एरर है तो वो सिमेंटिक फेज तक आते आते आपके सोर्स प्रोग्राम की एरर आपकी डिटेक्ट हो जाएगी। बाकी के फेज की जो एरर है वो एरर आपकी आपकी एनालिसिस फेज की एरर नहीं है, तो उसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। और वो एरर आपकी अलग अलग कारणों से आ सकती है। जैसे इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में जो एरर आ सकती है, जब हम 3 एड्रेस कोड को कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसमें एरर आने के चांसेस हैं। जैसे कोड ऑप्टिमाइजेशन में हमने किसी कोड को रिड्यूस कर दिया तो उस कोड में एरर आ गई, या हमने उसको ऑप्टिमाइज करने गए तो ऑप्टिमाइजेशन की हमने गलत एल्गोरिथम लगा ली, तो उस वजह से एरर जनरेट। मीन्स कि जो भी हमारी नेक्स्ट 3 फेजेस की एरर आ रही है, जिसको हम सिंथेसिस फेज की एरर कह रहे हैं, वो इसलिए इसमें नहीं आएगी क्योंकि इसमें इनपुट सोर्स कोड की एरर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता। सो द कंपाइल टाइम, अच्छा इसको बिल्कुल ऐसे मत समझिएगा कि फिर वो सारी एरर्स आपकी रन टाइम एरर की कैटेगरी में जाएंगी, नहीं। दैट एरर्स आर इंटरनल एरर्स। ओके, so compile time errors can further be classified as lexical phase error, syntactic phase error and semantic errors. So the example of lexical phase errors are if we are exceeding the length of the identifier or a numeric constant, if we have variable, if we have some variable integer in size and we are storing some data which are long in nature. So these are the error comes under the category of lexical phase error. Illegal appearance of illegal character, unmatched string, these are some examples of lexical phase error. जैसे आपने यहाँ print hello के बाद एक सेमीकोलन लगाया, सेमीकोलन के बाद एक डॉलर सिंबल ऐड कर दिया। So dollar is an illegal character. So this illegal character which comes at the end of the statement is illegal character. So this is also a lexical phase error. कमेंट हमने स्टार्ट किया और कमेंट को हमने क्लोज नहीं किया, क्लोज कर दिया, स्टार्ट नहीं किया, सो ये भी आपका एक लेक्सिकल फेज एरर की कैटेगरी में आएगा। सिंटैक्स फेज एरर, एरर्स इन स्ट्रक्चर, हमें पता है सबसे ज़्यादा एरर अगर हम डील करते हैं तो इफ वी आर डीलिंग विद कंपाइलर डिजाइन, मोस्ट एरर्स कम्स बिकॉज ऑफ द सिंटैक्स. So syntax means error in structure. If we are using some keywords and we are not spelled it correctly, so misspelled keywords are also syntax error. We are not following the certain syntax of some keywords or some programming constants, so it is also a syntax error. For example, if we are dealing with some looping, we are using the while loop or we are using do while loop, and we are not following the syntax of do while loop or for loop or any programming construct, then it comes under the category of, it comes or it throws the syntax error. Missing operator, we have to add two numbers and we are not placing the plus symbol in both the operands. Unbalanced parenthesis, we have opened the parenthesis and we didn't close that parenthesis. Sometimes we found errors like unwanted else statement. So unwanted else statement means we have else statement, but the if statement was not properly closed. So these kinds of error which are basically belongs to the syntax of some programming construct is comes under the category of syntax phase error. In semantic phase error, typecasting, we are storing some data in incompatible types of operand. We are using some undeclared variable. Okay, the parameters in the
in the actual argument, if we are dealing with some function, the number of parameter passed in the actual is different from the formal. So if the not matching of the actual argument with formal one, it also raises some semantic phase error. Here is an example where a 10 size of array integer in nature, and we are storing a value of b in a. So b is a single variable, and we are storing the value of b into the array. So this is not the way of storing. We have to mention the index of the this array. So this is also an example of semantic phase error. कभी कभार ये बच्चों आपको कंफ्यूजन आएगी कि ये a इक्वल्स b. देखिए अभी सिंटैक्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है. We are storing a data. If we have to store some data, or we have to transfer some one variable data to some another variable data, so there should be two variable. There must equal sign and delimiter like semicolon. So we are correct in the grammar, but it is not generating any kind of meaning. This is the case why it is comes under the category of semantic phase error. Okay. So in this section, we have seen the different types of errors and what basically error handler do. Now, the important concept is also how to recover from those errors. There are four ways of recovery strategies, we can say. The one is panic mode recovery. What happens in panic mode recovery? When a parser encounters an error anywhere in the statement, it ignores the rest of the statement by not processing the input from erroneous input to delimiter, such as semicolon. What happens in panic mode recovery, or what we can say in the panic mode recovery? It is kind of if we found some error, we stop processing, or we stop the compilation, we cease the compilation on that place, tries to recover by placing some data, and then continue your processing. This is the panic mode recovery. It is very easy, or we can say the easiest way of recovery, prevents parser from developing infinite loop. What happens if we have to put some data in the syntax, and we haven't, for example, we are using using a loop from 1 to 10. Okay, and the variable which derives this loop is not declared. Okay, so what we can say in panic mode, if we found some undeclared variable, we cease the compilation at that place, or point out this place and declare the variable according to the nature. Okay, then next we continue the process. Next one is statement mode. Statement, when a parser encounters and it tries to take corrective measures, so the rest of the input of the statement allows the parser to parse ahead. For example, inserting a missing semicolon, replacing comma with semicolon. What happens in the statement mode? बच्चों पैनिक मोड में क्या हो रहा था? पैनिक मोड में अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है, या कुछ भी हमने गलती कर दी है, तो हम इंटरनली उसको अज्यूम करके, यानी कंपाइलर उसको अज्यूम करके आगे के प्रोसेस को कंटिन्यू कर देता था. जैसे अगर हमने x वेरिएबल है और उस x वेरिएबल में हमने 2 स्टोर कर लिया है और इस x को डिक्लेयर नहीं किया, तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एरर रिकवरी, और द इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एरर हैंडलर to declare this variable x as an integer variable and continue the process, although it has to to show that this is an error point. ठीक है. जबकि स्टेटमेंट मोड में क्या होता है? स्टेटमेंट मोड में जैसे मान लीजिए आपको कहीं सेमीकोलन लगाना था, और उस सेमीकोलन की जगह पे आप वो सेमीकोलन आपने नहीं लगाया, तो कंपाइलर क्या करे, उस सेमीकोलन की जगह पे कॉमा लगा करके आगे कंटिन्यू कर दे, और उस पार्ट को वो एज एन एरर डिटेक्ट कर ले, और एज एन एरर डिटेक्ट करके इसको रिपोर्ट कर दे. अगर इस कॉमा के लगाने के बाद एरर रिमूव हो जाती है, देन ओके. अदरवाइज ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, और इसमें आपके आपके रॉन्ग करेक्शंस होने की वजह से हो सकता है कि आपका प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में चला जाए. अगली है एरर प्रोडक्शन. एरर प्रोडक्शन एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए, सम कॉमन एरर्स आर नोन टू द कंपाइलर डिजाइनर दैट मे अकर इन द कोड.
In addition, the designer can create augmented grammar to be used as production that generate erroneous construct when these errors are encountered. इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि कंपाइलर डिजाइनर को पहले से पता है कि किस किस तरह की एरर आ सकती हैं, उस तरह के प्रोडक्शंस को उसने पहले से डिफाइन कर दिया। और अगर वो प्रोडक्शंस आ गई या उससे मिलती जुलती कुछ प्रोडक्शन आ गई जो कंपाइलर डिजाइनर ने बता रखा है, इसको आप कह सकते हैं कि कंपाइलर डिजाइनर टेक्स सम प्रिवेंटिव मेजर्स सम प्रिवेंटिव मेजर्स इन एडवांस। अब वो पहले से कुछ चीज़ें एडवांस में कर रखा है कि अगर इस तरह की एरर आती हैं तो इस तरह के एरर को हम इस कोड से रिप्लेस कर देंगे या इस तरह से हम इसको रिकवर कर लेंगे। ठीक है, कॉमन एरर जो भी आती है उन कॉमन एरर्स को वो पहले से जान रहा है और उनके अकॉर्डिंग उसने कुछ एरर प्रोडक्शन लिख रखे हैं और उन एरर प्रोडक्शंस को वो रिप्लेस कर देगा। ठीक है, लास्ट आता है आपका ग्लोबल करेक्शन। अ पार्सर कंसीडर्स द प्रोग्राम इन हैंड एज अ होल and tries to figure out what the program is intended to do and tries to find out the closest match for it, which is error free. When an erroneous input or a statement X is fed, it creates the pass tree for some closest एरर फ्री स्टेटमेंट वाई। देखिए अब इसका क्या कंसेप्ट है, ये कुछ एरर प्रोडक्शन से ही मिलता जुलता है। इसका क्या है कि अगर हमारे एक्स में कहीं कुछ एरर आ रही हैं, इस किसी स्टेटमेंट एक्स में अगर हमारे पास कोई एरर आ रही है तो हम देखें कि इस एक्स को रिमूव करने का क्या सबसे क्लोजेस्ट वे है। ठीक है, हमने कहा कि अगर एक्स को वाई से रिप्लेस कर दें तो हमारा एरर रिमूव हो जाएगा। वी ट्राइज टू चेंज दिस एक्स टू वाई। ठीक है, तो इस तरह से हम करेक्शन परफॉर्म करते चले जिससे कि हमारी कोड में जो भी एरर हो वो रिमूव हो जाए। तो बच्चों आज हम लोगों ने इतना तक देखा है कि कंपाइलर का ये एरर हैंडलर है, इसका क्या काम है, कैसे क्या काम है। तो अगर आप देखें, अगर इसको बहुत ही जनरलाइज्ड वे में कहें तो एरर हैंडलर का काम क्या है, डिटेक्शन ऑफ एरर, रिपोर्टिंग ऑफ एरर, रिकवरी फ्रॉम दोज एरर। डिटेक्शन कैसे, वो हर फेज में प्रोग्राम को स्कैन करे, हर फेज के प्रोग्राम को स्कैन करने के बाद, फेज का मतलब लेक्सिकल सिंटैक्स और सेमेंटिक्स फेज की बात कर रहा हूँ, वो हर फेज में डिटेक्ट करे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा एरर डिटेक्ट कर रहा है डिटेक्ट करे और डिटेक्ट करने के बाद उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग करे। रिपोर्टिंग ऐसी हो कि वो कॉम्प्लिकेटेड ना हो, किसी तरीके की डुप्लीकेसी ना हो और एरर मैसेज में सोर्स प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही लिखा हो, बहुत ही स्पेसिफिक नेचर में होना चाहिए। फिर हमने एरर को क्लासीफाई किया, एरर को दो तरह से क्लासीफाई किया, इन टर्म्स ऑफ कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। This compile time error is further classified as lexical, syntax and semantic phase errors। कौन ये ये डिस्कस किया। फिर हर फेज में किस किस तरह की एरर आ सकती हैं ये हमने डिस्कस किया। फिर 4 एरर रिकवरी स्ट्रेटजी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें पैनिक मोड रिकवरी थी। जिसमें पैनिक मोड रिकवरी में ये था कि अगर कोई एरर आ जाए, किसी भी स्टेटमेंट में कोई एरर आ जाए तो हम उसको उसको इग्नोर करके आगे के में चलें और आगे के चलिए इसको मार्क कर लें कि हाँ यहाँ पे हमें एरर आई है। दूसरा स्टेटमेंट मोड में था। स्टेटमेंट मोड में क्या था कि अगर हमें कहीं सेमीकोलन या कुछ भी हमें मिसिंग हो तो उसकी जगह पे कोई दूसरा कीवर्ड या कुछ और ऐड कर दें, इससे सेमीकोलन की जगह पे कॉमा ऐड करके हम उसको आगे कंटिन्यू करें। लेकिन इसकी वजह से हमें रॉन्ग करेक्शन हम कर रहे हैं, हम सिर्फ गेस कर रहे हैं। गेस करने की वजह से हो सकता है कि हमें इनफाइनाइट लूप में चले जाए। तीसरा कॉन्सेप्ट था आपका एरर प्रोडक्शन, जिसमें कंपाइलर डिजाइनर पहले से सब से कॉमन एरर को देखा रहता है, उसको पता है कि इस तरह की एरर आ सकती हैं, तो उन एरर्स को वो के प्रोडक्शंस को वो हैंडल कर पहले से डिज़ाइन कर रखे और अगर उससे रिलेटेड कोई एरर आए तो उसको उस तरह से चेक करके उसके करेक्टिव मेजर्स को परफॉर्म करें। नेक्स्ट आता है ग्लोबल करेक्शन। ग्लोबल करेक्शन में हम ये देखते हैं कि ये एरर किस वजह से आई है और अगर इसके किसी वेरिएबल को या किसी डेटा को चेंज करके इस एरर को हम हटा सकते हैं तो हम उस एरर को हटा दें, हालांकि ये अभी तक कहीं पे भी इम्प्लीमेंटेड नहीं है। So these are some references while creating this presentation. You can go in these links and you can read this book to get the data. Thank you, students. So students, till now we have covered
the error strategy, error detection, and the error handling mechanism. In the next lecture, we will discuss the code optimization and code generation. Okay. So till now, in case of any doubt, in case of any query, you can contact me through mail or through WhatsApp. Thanks a lot.